Today we are starting the next phase of this communication subject. As of now, we have everybody eyes on board, please. This is the beginning of a new topic. That's why it was very important. And I suggested other people to stay, but I don't know whether they have or not. But we will accelerate from here on because we have, I think, laid a very good base for analog communication. Now, moving to the digital side should be slightly easier. And plus, we should realize this, that as a conclusion, we have the communication divided into two subtypes. One is called as continuous rather I would say modulation has, because देखो अभी तक हमने जो देखा वो टाइप्स थे किसके, ठीक है। तो हमने ये देखा था कम्युनिकेशन सिस्टम्स की हमने जब बात की थी तो हमने कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट या डिजिटल हमने कहा, ठीक। बट सिंस वी अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर इटसेल्फ, अगर आप मॉड्यूलेशन की बात करूं तो मॉड्यूलेशन टेक्निक्स भी क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट एंड डिजिटल। तो आप लिख लीजिए, तो वी हैव मॉड्यूलेशन की। आप देखो जो सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट है ना, मैंने आपको क्या कहा, सिस्टम दो टाइप के हैं, एनालॉग और डिजिटल। आपने खुद उसकी डेफिनेशन लिखी है, याद है आपको, एनालॉग सिस्टम्स एंड डिजिटल सिस्टम्स। Now obviously when I have an analog system, there is requirement of analog communication, analog modulation. And when I have a digital system, I need to have digital modulation technique as well. Do you get my point? So we understand the need of digital modulation. क्यों हमें पढ़ना है? So one is continuous modulation, another is digital modulation. अब इसके भी सब टाइप्स हैं। In continuous modulation, we have gone through two types. One is amplitude modulation, another is angle modulation. Amplitude modulation के हमने तीन टाइप्स देखे। First was AM, second was DSP, third was SSP, and finally VSP भी हमने देखे। एंगल मॉड्यूलेशन के हमने कहा दो ही टाइप्स है, FM और PM। FM is frequency modulation, PM is phase modulation, ठीक है। I'll not write abbreviations, but I leave that part to you. Later on you can search that and find the answer. Anyways, now when we go for the digital modulation, here in digital modulation we again have two types. One is baseband. मैं आपको बताऊंगा ये क्या है। खैर baseband हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। And we have band pass modulation. Then here we further have two types, pulse analog modulation and pulse digital modulation. पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन के अंदर कुछ टाइप्स आएंगे। पहला उसमें है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, व्हिच इज नोन एज PAM। आई राइट द शॉर्ट फॉर्म ओनली, फुल फॉर्म या तो उधर थोड़ी सी जगह छोड़ी है इसकी जस्ट नीचे, ताकि आप फुल फॉर्म वहीं पे लिखते जाएं, ठीक है ना। आपको एक नया बनाना पड़ेगा। So this is PAM,
नहीं, इसका नाम है पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन, ये डिजिटल मॉड्यूलेशन ही है, इसका एक नाम है। बिकॉज जिस तरह से मॉड्यूलेशन होती है दैट समवट मैचेस द वे एनालॉग मॉड्यूलेशन होती है। सेकंड इज पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन एंड थर्ड इज पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीन समझना, क्योंकि इससे काफी सारे डिवाइसेस चलते हैं आपके, ठीक है। पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन आप यूज कर सकते हैं काफी चीजों में, किसी सर्किट को ड्राइव करने में है और, ठीक है, आपको पढ़ा भी होगा शायद पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में इसमें काम आता है, उसमें काम आता है, खैर we'll see that later on. Then pulse digital modulation के अंदर आते हैं कुछ types. The first one, most important, eyes on board please. The first one is PCM. इसका full form है Pulse Code Modulation. Very popular, very important. Pulse Code Modulation. Followed by DPCM. That is Differential Pulse Code Modulation. Although आपके सिलेबस में बस यहाँ तक ही है, but just to name, इसके बाद आएगा डेल्टा मॉड्यूलेशन। नहीं, आई थिंक ये भी डेल्टा भी है आपके अंदर, डेल्टा मॉड्यूलेशन DM, and finally you have adaptive delta modulation. Now all these modulation techniques will be very simple and crisp. यहाँ पे हम उतना डिटेल में नहीं जाना है जितना हम प्रीवियस केसेस में गए। We'll just understand the system, how it operates, खत्म। Because we are dealing with ones and zeros now. We'll be dealing with ones and zeros, or logic high or logic low, ठीक? Now in band pass modulation we have binary signaling modulation, and we have M array modulation. In binary signaling we then have ASK, important and very easy, amplitude shift keying. Then we have this ASK will be almost same as amplitude modulation. ASK is somewhat similar in understanding to amplitude modulation. Then we have PSK, phase shift keying, followed by FSK, frequency shift keying, will be somewhat similar to frequency. In MA we have 4 array modulation, 4 array PSK, you have 8 array PSK, and so on. It can continue in powers of 2. So this is the whole graph of modulation, or I would say the whole picture of the modulation. की modulation के कितने types हो सकते हैं फिलहाल के लिए understanding के लिए, although there can be many new that you can mix certain and with the improvement in technology, but हमारे understanding of the subject के हिसाब से these are the two basic you need to keep in mind. So can you just read with me again? So मॉड्यूलेशन के कितने टाइप्स है? 2 टाइप्स। कौन सा? कंटिन्यूअस मॉड्यूलेशन एंड डिस्क्रीट मॉड्यूलेशन। कंटिन्यूअस मॉड्यूलेशन के 2 टाइप्स फर्दर है। कौन सा? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड एंगल मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के 3, कौन कौन सा? AM, DSB-SC, SSB-SC, VSB-SC। एक्चुअली क्योंकि ये सारे सप्रेस्ड कैरियर वाले हैं, so I think SC is understood, right? DSB का DSB-SC तो है, राइट। AM का दूसरा नाम है DSB-FC। FC मतलब हो गया फुल कैरियर, तो वो AM का दूसरा नाम कभी हम देखेंगे। AM के बदले आपने ये लिखा है नाम
DSD FC, FC मतलब इसमें कैरियर प्रेजेंट है। तो फिर एंगल मॉड्यूलेशन के दो सब टाइप्स हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो frequency modulation and phase modulation. Then coming to the digital modulation side, we have a very good classification and a very detailed classification. You have base band modulation and band pass modulation. Where base band modulation will be low frequency base, band pass will be high frequency base, या certain band वहाँ पे होगा। Anyways, फिर बेस बैंड के दो टाइप्स है, पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन एंड पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन। दिस इज मॉड्यूलेशन। पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन में आएगा पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बाद है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। अभी हमें स्टार्ट नहीं किया, लेकिन मैं इन तीन की डेफिनेशन आपको यहीं पे बताता हूँ, लिखना नहीं, बस याद रखना। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एक ऐसी मॉड्यूलेशन है जहां पे हम एक पल्स को लेते हैं, उस पल्स के एम्पलीट्यूड को वैरी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एम्पलीट्यूड ऑफ सर्टेन सिग्नल। तो हो गया पल्स की एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ओके, मॉड्यूलेशन किसकी होती है? पल्स की। ठीक है, पल्स का कोई पैरामीटर हम वैरी कर रहे हैं, तो अगर हम पल्स का एम्पलीट्यूड वैरी कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा? पल्स एम्पलीट्यूड वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू सम सिग्नल which can be our reference signal या मैसेज सिग्नल मान लो। Now जरा इसको बुलाओ। What can be pulse width modulation? Anyone who knows, just raise your hand. What can be now pulse width modulation? One sir. नहीं, किस पैरामीटर वो लिखा है ऑलरेडी। नहीं, पल्स की विड्थ को ही मॉडिफाई, मैंने कहा ना, इसको पढ़ना है ऐसे, पल्स की एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स की विड्थ मॉड्यूलेशन। नाउ कैन यू टेल मी कि पीपीएम में क्या होता है? दिस इज कॉल्ड एज पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। आप बस बताइए। एक्सीलेंट। इन पल्स यू कैन स्ट्रेट अवे राइट दिस डेफिनेशन इन एग्जाम एंड यू विल गेट द मार्क्स। सो ये हमारा प्रिपेयर यहीं पे हो गया बगैर पढ़े। सो पीपीएम इज पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। अब पीपीएम तो खैर हम पढ़ेंगे, आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ फिगर्स भी इसको ऐड ऑन करेंगे। तो पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन एक ऐसी मॉड्यूलेशन जहां पे पल्स की पोजीशन वैरी होती है विद रिस्पेक्ट टू एम्पलीट्यूड। मतलब क्या? एक रेफरेंस पोजीशन हमने ले ली, जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा है उतना वो रेफरेंस पोजीशन से ज्यादा आगे जाएगा। ठीक है, जितना कम एम्पलीट्यूड उतना कम ही आगे जाएगा, मतलब शिफ्ट उतना होगा। समझ नहीं आ रहा आपको? पता नहीं आ रहा, कोई बात, ये अपनी जगह पढ़ेंगे। एनीवेज, सो ओके, ये सबने बना लिया? पॉइंट लिख लीजिए जरा आप, राइट दिस पॉइंट प्लीज। इस ग्राफ के नीचे कंटिन्यूअस मॉड्यूलेशन। फॉर कंटिन्यूअस मॉड्यूलेशन you know m of t is continuous in nature and it varies. For continuous modulation we know m of t is continuous in nature and it varies one of the parameter of c of t, right, which is also continuous. ठीक, whereas for digital modulation m of t may be continuous but your c of t will be digital in nature. ठीक है, your c of t will be डिजिटल मॉड्यूलेशन में आपका m of t still might be continuous in nature but your sorry in digital modulation your m of t will still be continuous in nature but your c of t will be digital in nature because तभी मैंने यहाँ पे कहा ना पल्स की एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड वी नो कैरियर का ही कोई पैरामीटर चेंज होता है एंड कैरियर पल्स की फॉर्म में है। पल्स की फॉर्म में मतलब वो डिजिटल फॉर्म में है। ठीक है,
अच्छा, हमने हल्का सा एक आइडिया आपको दे दिया कि पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। तो लेट्स स्टार्ट विद पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन। इसमें आपका टाइप ए आएगा पैम, विच इज पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। समझना है? चलिए मैं तीनों एक साथ बना देता हूं। डेफिनेशन आप तीन ऐड कर लीजिएगा, मैं इन तीन का ग्राफ एक साथ बना देता हूं। आपको अगर अलग अलग आया क्वेश्चन तो आप अलग अलग बनाइएगा, ठीक है? You have to draw this signal for all of the three. Suppose ये आपका एक से continuous signal है, which is m of t. Okay? ये आपका pulse train है, इनकी width और amplitude क्या है? Same. And this is your c of t. Okay? ठीक है? In digital modulation, we are going through the first type, which is pulse analog modulation. ये लेकिन digital modulation, ठीक है ना? इस वर्ड से पता चल रहा है आपको पल्स। ये आपका मैसेज सिग्नल है, ये आपका कैरियर है। अब सवाल है पहले टाइप में क्या होगा? When I talk about my first signal, suppose this is the reference value, which is say x, and I'll mark this over here. Suppose this is the reference value x, and I have to try to follow the shape of the message signal. Which is somewhat like this, right? So मेरे पहले पल्स का एम्पलीट्यूड जो है वो लॉक हो जाएगा बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल। सो माय फर्स्ट पल्स विल हैव एम्पलीट्यूड ओनली अप टिल दिस पॉइंट। कुछ समझ आया क्या हो गया? मतलब इस पल्स का जो एम्पलीट्यूड पार्ट है वो स्केल हो गया बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। सी ऑफ टी के पहले पल्स का एम्पलीट्यूड स्केल हो गया बाय amplitude of message signal. My first pulse will be of the width, तो fixed रहेगी, बस amplitude change हो जाएगा. Now second pulse will go up to here and will have the fixed width like this. My third pulse will go up to this point and width will be same. My fourth pulse will rise up to this point and the width will be same. So can you see that the amplitude of the pulses is varying linearly with respect to इस फेज को। आपका जो मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड, यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम है, एम्पलीट्यूड जो ये रेफरेंस एम्पलीट्यूड x था, x की बहुत नीचे आ गया। यहाँ पे रेफरेंस एम्पलीट्यूड तो x है और x यहाँ पे है, लेकिन इसका वैल्यू x से ज्यादा है। ये पॉइंट इज ग्रेटर देन x, therefore pulse का एम्पलीट्यूड भी शूट कर रहा है। Now let's go to the next one. So this one is PAM. If this comes in examination, ये figure. If pulse width modulation comes in exam, ये figure and this one. ठीक है? If all of the three come, then this whole figure is enough. अब क्या हमें मॉडिफाई कर रहे हैं जी? बोलो जी। पल्स की विड्थ किस विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड वैल्यू, ठीक है? सो पहले पल्स की विड्थ आएगी बहुत कम, रेफरेंस वैल्यू x पे ही रहेगा। सपोज दिस इज x, ये x बराबर यहीं पे, रेफरेंस वैल्यू x ही रहेगा। सारे पल्स का एम्पलीट्यूड कितना? x तक ही रहेगा जो उनका एक्चुअल एम्पलीट्यूड था। मैंने ब्लू मार्कर का चलिए। So the first pulse will have a very small width. Why?
because this is pulse width modulation. Followed by जो हमारा सेकेंड पल्स है उसकी विड्थ होगी, इसको बहुत नैरो बना दो, इसको बहुत नैरो बना दो. So this one will be slightly higher than the previous one. Now the next one will be slightly lesser than this one. ठीक, मतलब जो एम्पलीट्यूड का हो रहा है ना वेरिएशन, यहाँ पे एम्पलीट्यूड सबसे कम है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पे इससे कम है. आइज ऑन बोर्ड, यहाँ पे सबसे कम एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे थोड़ा इससे ज़्यादा एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे फिर इससे कम एम्पलीट्यूड. तो ऑब्वियसली यहाँ पे विड्थ सबसे कम होगी, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा होगी, यहाँ पे विड्थ इससे कम होगी. ठीक है ना. नाउ एज यू मूव ऑन फॉर दिस पल्स वेरी हाई विड्थ, but you will always try to ensure that the width is slightly lesser than the width. अब क्या करना है हमें, इस तरह से इसका पीरियड इंश्योर करना है ताकि ओवरलैप ना हो जाए, मतलब ये विड्थ कभी इससे बाहर न जाए. We have to ensure that. हम उस तरह से करें. तो क्या हो रहा है, पल्सेस की विड्थ वैरी हो रही है with respect to the amplitude of maxis. Next one is pulse position modulation. इसमें आपका वैल्यू x तो रहेगा ही रहेगा जो है रेफरेंस वैल्यू. दूसरा इनकी विड्थ भी क्या रहेगी, सेम. अब वैरी क्या होगा, वैरी इनकी पोजीशन हो जाएगी. मतलब जो ये रेफरेंस पॉइंट है देखिए, मेरा पहला पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन के केस में सिंस एम्पलीट्यूड थोड़ा है तो हल्का सा इतना शिफ्ट होगा, देन मेरा पल्स आएगा ऐसे. तो मतलब यहाँ से भी हल्का सा शिफ्ट है और यहाँ से भी. ऑब्वियसली जो आपका ये वाला रेफरेंस पॉइंट है इससे भी थोड़ा सा शिफ्ट होगा, उतना ही जितना यहाँ पे है, लेकिन मुझे एक साइड पे फोकस करना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे या एंड पॉइंट पे. अब देखिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट खैर ये था. अब नेक्स्ट वाले का एम्पलीट्यूड जो है इससे ज्यादा है तो थोड़ा शिफ्ट ज्यादा होगा, लेकिन विड्थ क्या रहेगी, फिक्स. रेफरेंस पॉइंट को लेना, ठीक है. ये वाला इससे कम है तो हल्का सा शिफ्ट होगा. अब इस वाले का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैसेज करने का सबसे ज्यादा था तो यहाँ पे शिफ्ट भी बहुत ज्यादा होगा. ठीक है, तो ये है शिफ्ट, यहाँ पे ये है शिफ्ट, यहाँ पे ये है शिफ्ट, यहाँ पे थोड़ा सा ये इससे मैच हो रहा है. समझ आया. इसका मैक्सिमम है, मैं कहूँ शिफ्ट या इसकी पोजीशन जो है मैक्सिमम वैरी होगी. ठीक है, इसकी पोजीशन जो है मैक्सिमम वैरी हो गई है. किस वजह से, किस वजह से, बिकॉज ऑफ दिस पीक. ये जो पीक है यहाँ पे, इस वजह से हर किसी जगह मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, सॉरी यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ है और यहाँ पे मैक्सिमम पोजीशन आगे गई है. ठीक है, मैक्सिमम शिफ्ट मिला. सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ पल्स एनालॉग. So here as a conclusion you say यहाँ पे only what changes? Only amplitude changes. PWM में only width changes. PPM में only position changes. So this is आसान ना? ठीक है ना? ये ना? हो गया. अच्छा object को answer. Okay. Very good. So this like this. मैंने क्या बताया, जब भी कोई लेगा एक क्लास में क्या करना होता है, सिट डाउन, कीप मम एंड स्टार्ट. कॉपी जल्दी निकालो, काम शुरू करो. इन आप पीछे जरा
बस इतना लिख लीजिए, नॉइज जो है, नॉइज इफेक्ट्स एम्पलीट्यूड, इसको गोल्डन वर्ड्स में लिखिए, हैश करके लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को डिटरमाइन करेगा ये। कल जाके कोई आपसे पूछेगा आपको कम्युनिकेशन समझ आया नहीं, इस पॉइंट से समझ आएगा। नॉइज इफेक्ट्स एम्पलीट्यूड, नॉइज क्यों देखिए, काम फंसे हो आप, रखो आप वीडियो देखना शाम को, बेहतर कोई आपसे बड़ा वीडियो से थोड़ा जाए वैसे भी बेहतर क्लास में पढ़ा हो नहीं है छोड़ी थे इसको तेरी वीडियो से। Anyway, just kidding. Let's move to the next topic because we have to move faster now. ठीक है? I said, what did I say? Did you understand that? Did you understand that? Oh भाई, क्या कहा मैंने? Noise always. I use the word always. हाँ? क्या ना? Noise always affects amplitude. दुआ कहें? Noise always affects amplitude. So can you tell me which one among these is then safe from noise? They are slightly better. ठीक है? लेकिन noise किसी और शक्ल में भी इनको इफेक्ट करेगा। नॉइज ने एम्पलीट्यूड्स की वजह से किसी और सिग्नल को कुछ और चेंज किया एंड देन अल्टीमेटली इट रिजल्टेड एन इफेक्ट ऑन PWM and PPM also, but we can conclude that PAM is will highly be affected by noise as compared to PWM and PPM. The reason for that is pulse amplitude मॉड्यूलेशन के लिए जिस चीज में मैसेज छुपी है वो क्या है, एम्पलीट्यूड में ही मैसेज छुपी है। और नॉइज किसको इफेक्ट करता है, समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो? आप कहाँ खोए हो भाई, इसको बुलाओ। कॉपी से क्या देख रहे हो, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, कॉपी से तो देखने का कोई मकसद ही नहीं। आई एम सेइंग नॉइज, और ये देखो ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है ये, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन की अंडरस्टैंडिंग को बताएगा, किसी को दर्शाएगा इनको कितनी कम्युनिकेशन समझ रही है या समझ आता है। नॉइज में किसको पता है एम्पलीट्यूड, समझ आ रही है बात? तो कोई भी ऐसी चीज जैसे हमने कहा पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कौन ज्यादा नॉइज इम्यून है? नॉइज इम्यून कौन है? व्हाट डू मीन नॉइज इम्यून? आपकी इम्यूनिटी कैसी है जेड के खिलाफ? एफएम की इम्यूनिटी कैसी है नॉइज के खिलाफ? दैट इज व्हाट आई मीन बाय नॉइज इम्यून। आगे FM is more noisy. The reason for that is this only, that noise affects amplitude, and in amplitude, eyes on board, and in amplitude modulation, हमारी मैसेज किसमें छुपी है? एम्पलीट्यूड में ही। तो जो ही हमारे हल्का सा नॉइज आ गया चैनल में, हमारी मैसेज समझो खो गई। क्यों? क्योंकि हमारी मैसेज की वेरिएशन छुपी थी ना उसके एम्पलीट्यूड वेरिएशन में। कोई एक एक्स्ट्रा एम्पलीट्यूड आ गया, मुझे सपोज वहां पे लो वैल्यू था वो हाई दिखा रहा है मुझे, तो वो जो है तो सुबह को ऐसा मसला। सो दैट इज द प्रॉब्लम विद एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस। एनी मॉड्यूलेशन which varies or keeps its message in amplitude will be highly affected by noise. That's the final conclusion. So any modulation technique which stores its message in amplitude will highly be affected by noise. Why? Because noise always affects amplitude. But now you cannot say that PPM and PWM will never be affected by noise. Noise किसी और के amplitude पे affect करेगा, लेकिन suppose वो कुछ फेज वेरिंग मॉड्यूल होगा तो उस वजह से वो आउटपुट पे फेज चेंज करेगा, तो शायद इनका भी इफेक्ट आ जाएगा। हम उस पर डिस्कशन में नहीं आएंगे, लेकिन PAM and AM will highly be affected by noise, whereas frequency modulation and PWM and PPM will have a better noise immunity. ठीक है? तो आपके पास अगर noisy environment है तो आप कौन सी मॉड्यूलेशन यूज करेंगे इनमें से? That is the conclusion. Fine, good. Let's move to the next one. मैंने आज हम कर सकते हैं, तो क्या ऑप्शन? आज हमारे दिमाग के टायर कुछ कम हो लगे, एक बस पे तो नहीं छोड़ के आए। ओके नेक्स्ट, हमारे जरा सिलेबस सब लोग खोलिए जरा,
Open the syllabus, please. Those who are watching from the video itself and those who are present, open your syllabus right now on your laptops or cell phones. I want to make an important announcement. Come on. Important announcement. Open the syllabus. syllabus भी निकालो. उसके कैलेंडर निकालो. निकाला सबने? डिजिटल मॉड्यूलेशन जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3. इसमें पहली हेडिंग क्या है? फर्स्ट वन, एलिमेंट्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन. वंस आई ऑन बोर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी डिस्कस. जब हम एलिमेंट्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन की बात करेंगे, डिजिटल कम्युनिकेशन का जो हार्ट और से जो बेस है वो है हमारा PCM. सो नेक्स्ट हेडिंग उसके बाद है एडवांटेज. एडवांटेज के बाद तीसरी हेडिंग क्या है? ठीक. सो एलिमेंट्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन और एलिमेंट्स ऑफ PCM, हम इसको सेम हेडिंग मान के चलेंगे. ठीक है. तो हम लेकिन पढ़ेंगे PCM या एलिमेंट्स ऑफ PCM. तो आप नेक्स्ट, इसलिए अगर एग्जाम में आपको आया एलिमेंट्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, तो आप किसके एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे? PCM. आप लेकिन लिखेंगे नहीं ऊपर एलिमेंट्स ऑफ PCM, ऊपर लिखेंगे एलिमेंट्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, और अंदर जो भी मॉड्यूल डिस्कस करेंगे वो PCM का करेंगे. बिकॉज PCM इज द बेसिस टू अंडरस्टैंड ऑल अदर डिजिटल कम्युनिकेशन. इफ यू अंडरस्टूड PCM, you are good to go. So next heading is PCM. What is the full form of PCM? PCM का full form pulse code modulation. Pulse code modulation is the full form of PCM. Pulse code modulation is the full form of PCM. ये कुछ एग्जाम तो आपने बता का एग्जाम पॉइंट कर ये ठीक है. एग्जाम क्या एग्जाम? PCM pulse code modulation. First elements. What can be the possible elements of a digital system? Any idea? एक डिजिटल, हम कंटिन्यूअस से जा रहे हैं टुवर्ड्स डिजिटल. So suppose this is the continuous domain, या ये continuous system है. हम इधर से अब जा रहे हैं डिजिटल की तरफ. मतलब हमारा जो आगे जो सारा सिस्टम होगा या उसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? डिजिटल. So what should be the first step? Any idea? Converter, very good correlation. बट उतना एग्जैक्ट नहीं है. एनी आइडिया? कोई ब्लॉक का नाम बताइए जरा जो हमारे कंटिन्यूअस सिग्नल को, पहले सिग्नल की बात हो, ये तो सिग्नल है ना. वी आर मूविंग फ्रॉम अ कंटिन्यूअस डोमेन टू डिस्क्रीट और डिजिटल डोमेन. ऑब्वियसली द प्राइमरी सोर्स और द फर्स्ट पॉइंट फॉर अ कंटिन्यूअस डोमेन इज अ कंटिन्यूअस सिग्नल. So the first block that this system will encounter in order to go to the digital domain is a sampler. This will be the sampler. इसका काम क्या होगा? Sampling. ये sampling करता है. Sampling क्या हो गया? आपके continuous signal को based on a pulse train sample करता जाएगा. मतलब इट इज मोर ऑफ लाइक, मैं इस तरह से कहूँ तो मेरी आंखें बंद हैं. आई ओपन, आई टेक अ सैंपल ऑफ द क्लास एंड आई क्लोज माय आईज. आफ्टर सर्टेन इंस्टेंट या सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आई ओपन अगेन एंड आई टेक अनदर सैंपल. यू गेट माय पॉइंट? तो क्या हो जाता है अगर आपका एक सिग्नल जो कि कंटिन्यूअस इन नेचर है इस तरह से, ये सैंपल्स की वजह से डिस्क्रीट बन जाता है. पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे सैंपल्स दिए जाएंगे. तो आपका ये वाला सिग्नल कन्वर्ट हो गया इनटू दिस सिग्नल which will have certain amplitudes only with particular instant of time. Where this period is t of s, the sampling period. So, and this is the envelope of these impulse train. By the way, ये क्या है? सारी impulses है ना. impulse और pulse में समझते हो? impulse और ramp में समझते हो डिफरेंस क्या है?
इम्पल्स और रैंप में डिफरेंस समझते हो? सब समझते हैं जिन्हें असाइनमेंट खुद किया है, आज जाके वो काम रहा है, इसीलिए मैंने वो असाइनमेंट तब दिया होगा। आया समझ? सो इम्पल्स ट्रेन ये होती है, आपने बस एक इम्पल्स सिग्नल देखा था, इसको कहेंगे हम इम्पल्स ट्रेन। इस तरह पल्स तो ये हो गया, अगर एक अकेला पल्स है, अगर इसके साथ बहुत सारे पल्सेस हैं तो दिस इज कॉल्ड एज अ पल्स ट्रेन। ट्रेन है ना सा रियल रियल। सो बहुत सारे डब्बे एक साथ जुड़े तो उसको हम पल्स, उसको ट्रेन कहते हैं। लाइक बहुत सारे पल्स जुड़े तो उसको हम पल्स ट्रेन कहते हैं। इस तरह ये भी इम्पल्स ट्रेन कहलाती है, ठीक है जी। सो एक कंटिन्यूअस सिग्नल को हमने एक इम्पल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई किया, आप ऐसे समझिए। तो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे हमें एक एक सैंपल मिल रहा है और वो सैंपल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमारा कितना एम्पलीट्यूड, जो अपना पॉइंट, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमारा एम्पलीट्यूड कितना है, दिस इज कॉल्ड सैंपल, ठीक है जी। ये है सिंपली आसान वर्ड फॉर सैंपल। इसके बाद सैंपलर पे काम खत्म नहीं होता है, वी वुड नीड समथिंग कॉल्ड एज क्वांटाइजर, QUANTIZER। इसका काम होता है क्वांटाइजेशन, QUANTIZER। इस क्वांटाइजर का काम होता है क्वांटाइजेशन। उसके बाद होगा एक एनकोडर। इस एनकोडर का काम होता है एनकोडिंग, जस्ट सिंपली अंडरस्टूड बाय द नेम itself। आसान है ना? देन फॉलोइंग दैट द आउटपुट विल बी अ डिजिटल सिग्नल। अभी एक डिजिटल सिग्नल की बस बात हो रही है, हमने अभी सिस्टम की बात नहीं। So इसका मतलब when we talk about the blocks of a digital system या PCM system, the first thing that we have to understand or read or study is a sampler, right? The first thing that we need is a sampler. इसमें चार्ज है उसमें, कैसे है? परेशान कर रहा है। अपना चीज़ें से लूज़ हो गई वर्ड्स, इससे बड़ी देर हो रहा है। बस टाइट पड़ जाए, hands down, आराम से कर दो। So sampler, so heading आप लिखिए सैंपलिंग थ्योरम या सैंपलर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बाय द वे ये टॉपिक्स की बात करें तो जो सैंपलर हम चलो आप पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नहीं अभी 10 मिनट, a lot can happen in 10 minutes। चलो हम अभी सैंपल पे नहीं जाएंगे, हमने हेडिंग एक्चुअली स्टार्ट की थी PCM, ठीक है ना? हम इसको एक साथ पढ़ेंगे। सो हेडिंग आप लिखिए ब्लॉक डायग्राम ऑफ PCM, ब्लॉक डायग्राम ऑफ पल्स कोड मॉड्यूलेशन सिस्टम, या हम कहेंगे एलिमेंट्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। एलिमेंट्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम वही है ना टाइम हेडिंग सिलेबस की, क्या है? शुरू डायग्राम बहुत लंबी होगी, या तो पूरा नए पेज से स्टार्ट करें तो बेहतर है, या तो ऐसे पेज को रोटेट करके इस तरह से आप रखिए, ऐसे बेहतर रहेगा। इस तरह से डायग्राम इस तरह से बनाइएगा। अपनी कॉपी की डायग्राम बहुत लंबी है, क्या दे रहे हैं आप? So the first thing has to be an M of t. Follow me. Be with me, please. First thing has to be an M of t. M of t will go into a low pass filter, right? To ensure what?
बैंड लिमिटिंग. डू यू रिमेंबर बैंड लिमिटिंग? हम बैंड लिमिट करते हैं, ठीक है. सो लेट्स सपोज माय m of t was something like this. It was going beyond the limits. यहाँ पे मेरा m of t, this is m of t. ये एक तो ब्लॉक्स में बनाने हैं तो उनके साथ साथ डायग्राम्स भी बनाने हैं, इसलिए काफी पेज लगेगा, ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट वन बाय द वे, काफी इंपॉर्टेंट है. द आउटपुट ऑफ दिस लो पास फिल्टर विल देन बी only this part. तो मेरा जो बाकी वाला पार्ट है वो फ्रंट टेक हो जाएगा. We will have finite bandwidth. This is going to infinity by the way, and this is limited or bandwidth. यहाँ पे bandwidth होगी infinity, and this is bandwidth is equal to fixed या limit. Next block will be a सैम्पलर ब्लॉक. नेक्स्ट ब्लॉक कौन सा है? सैम्पलर. इसका जो आउटपुट होगा यहाँ पे वो कुछ इस तरह से. नेक्स्ट ब्लॉक ओवर हियर इज सैम्पलर ब्लॉक. Let's assume some random values. ठीक है जी. तो ये इस सिग्नल, ये जो एनवेलप होगा इसका, वो इस सिग्नल को समवॉट मैच करेगा, ठीक है जी. Let's suppose this is 0.9 volt. यहाँ पे लिख लो आप, this is 1.6 volt. Suppose this is 0.8 because this is 0.9. Ison board, इसका एम्पलीट्यूड आप लिखेंगे 0.8, इसका एम्पलीट्यूड लिखेंगे 1.6 volt, इसका 0.9 followed by 2.4 followed by 3.9 followed by 4.2. ये मैं क्यों लिख रहा हूँ? There is a reason. ठीक है. .8 followed by 1.6 followed by 0.9, 2.4, 3.9, 4.2. चलो. नेक्स्ट ब्लॉक कौन सा होगा यहाँ पे? बोले सैंपलर के बाद क्या आता है? सैंपलर के बाद क्या आता है? सैंपलर के बाद क्या आता है? क्वांटाइजर. एग्जैक्टली राइट. इसका आउटपुट जो होगा एक क्वांटाइजर का सिंपल काम जरा समझ लो. एक क्वांटाइजर का सिंपल काम होता है तफरीक लुतराव. उसमें तफरीक लुतराव किसके? जो पहले ही क्वांटाइजेशन लेवल सेट करता है. क्वांटाइजेशन लेवल्स, क्वांटाइजेशन वोल्टेज लेवल सेट करता है. सपोज आपके पास क्वांटाइजेशन वोल्टेज लेवल है 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट और 4 वोल्ट. ठीक है. ये सारी क्या है? क्वांटाइजेशन लेवल्स. ये क्या करता है? जो भी एम्पलीट्यूड होगा 1 के करीब, वो 0.8 हो या 0.9 हो, ये कहेगा कि ये 1 है. मेरा शायद ऐसा है कि 0.8 0.9 तो 1 हो जाए. ठीक है. तो ये क्या करेगा? ये इस 0.8 को फिक्स करेगा तो 1 वोल्ट. यू गेट माय पॉइंट? ये कैसे करा था? फिक्र लुतरा. ये परेशानी हमारी कम. आई व्हाई डोंट यू टेल मी यार है
So what is the job of this quantizer? It simplifies things for us. It says whether you have 0.8 or 0.9, they both are close to 1. It has designed certain quantization levels. So they all are close to 1. Let me consider them as 1. You don't get my point, but when you watch the video, you will get the point. Unfortunately, you are also less than you get to. That's another problem. So I told you many times, you should sit on the first bench. First bench. Semester has ended, but you have not inculcated this habit. I don't know what that is. Anyways, so 0.8, this quantizer will tell me that fine, it's okay, 0.8 is okay with 1. So let's, because I have quantization levels 1, 2, 3 and 4, I don't understand beyond that. I will take 0.8 as 1 volt. Okay? So for the first sample, what is the voltage value? 0. Can you just stand up from there? Just come over. 0.8. Quick. Come out. Yeah, you come out. Sit over here. So next point, 1.6. 1.6 is closer to which of the quantization levels? Can you tell me, CR? 1.6 is closer to which of the quantization levels? 2. I'll just repeat for you. Listen, this is the quantizer. Quantizer has set certain quantization levels. It does not understand beyond these quantizations.